Yes, children. So I am again here with another topic called enzymes. Enzymes are the most important thing. Without enzyme, you cannot imagine सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गन. बोले कैसे सर है, कल बोला था डीएनए के बिना संभव नहीं, आज बोला एंजाइम के बिना, सांस लेने के बिना भी संभव नहीं. एनीवे ऑल दीज आर देयर ट्रू इन देयर ओन प्लेसेस. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो catalysts. Now what are catalysts? What are catalysts? Catalysts are those substances which are involved in a chemical reaction but they are not consumed in a chemical reaction. They are simply present there. Presence itself is enough. It is एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं या आप स्कूटर चला रहे हैं, नया नया सीखे हैं. On the day you got your scooter and there is a free road, you will try all possible experiments, whatever you can do. Probably it become your habit. But the day your father sits at the back seat, you may have any desire, but you will not be able to do that. Why? Because your father is sitting behind. So control किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है. Father is not involved in driving. You are only driving. But his presence is enough. His presence is enough कि अब आप न तो स्कूटर की रेस करेंगे, न आप स्किड करेंगे, न आप फालतू हॉर्न बजाएंगे, न आप जिगजैग करेंगे, ना कुछ और. Your scooter will be just moving in the way it should move. ठीक है? So your father is acting as a catalyst. He is a now catalyst does not always need to increase the rate of reaction. They are even decreasing the rate of reaction. And a catalyst is a substance which alters the rate of reaction, may be increasing or decreasing. Now respiration we have studied in the previous few days back. Respiration was a process which are divided into so many small steps. Why? So that the energy comes out in a small packet which can be stored and which may not damage our body. So the respiration rate of reaction is slowed down. ठीक है? Whereas in photosynthesis the rate of reaction is increased, because had the photosynthesis gone in a normal way, probably it would have never occurred. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हवा में कभी कंबाइन ही नहीं करते. नीदर एनी इंडस्ट्री somebody could do it till date. ठीक है? So enzymes are increasing the rate of reaction or enzymes are decreasing the rate of reaction. So any substance which alters the rate of reaction is called catalyst, and those catalysts which are found in the living beings are called biocatalysts, and all the biocatalysts are enzymes. And interestingly, all the enzymes are proteins. All the enzymes are proteinous in nature. Why? यही तो है इसकी चाबी. That is, we can make any protein as and when required, and we can break any protein as and when its work is over, and the information for a protein is coded in the DNA. ठीक है? And enzymes are specific. Enzymes are specific. एक एंजाइम एक ही रिएक्शन कराता है. Now फर्स्ट कीजिए, ये एक सेल है. In this cell the protoplasm is there. Protoplasm has got all possible chemicals, and oxygen is there, and other molecules are there. If there is no specificity, any type of chemical reaction can take place. If in your chemistry lab, take a beaker of, मत करना कभी, करना समझ रहे, एक 500 ml का beaker लेते हैं, 500 ml beaker, and in the 500 ml beaker, you put one by one different type of chemicals. So there may be several type of reaction. हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है कोई पॉइजनस गैस निकल जाए, हो सकता है सम सब्सटेंस, हो सकता है स्पिल हो जाए, हो सकता है ट्रेमेंडस हीट में प्रोड्यूस, whatever. Why? Because all the substances which are there, they can combine with randomly with one another. Living beings is involving all the organic substances. They generally don't react. They are not so vigorous in reaction.
and their reactions are very well commanded by enzymes, very well commanded by enzymes, controlled by enzymes. As and when what type of reaction is required, that type of enzymes will be produced by the information come from the DNA in a way to make RNA. RNA will make protein. Protein may act as an enzyme. Enzyme may carry out a specific reaction. When the work is over, the enzyme will be dissolved and the reaction, the process will be suspended. Beautiful. That means if I had to eat something, I need enzyme ptyalin. So the information will be flown and the ptyalin will be made, and then I'll eat bread and then it will be digested into the maltose. I'll get some sweetness in my mouth because of the conversion of starch into maltose, and then when the work is over, the ptyalin production will stop. But ptyalin is a wrong example I taken because it is a continuous production process. Now there are some enzymes which are continuously secreted, like the respiratory enzymes are all the time working. But there are some enzymes which are working as and when required. Suppose वैसे तो काफ़ी अच्छा रंग है मेरा, खूबसूरत सा, लेकिन अगर मेरे को काफ़ी टाइम तक के लिए धूप में काम करना पड़े, से फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क डन ऑन माय हाउस. In the peak summer, I had to stand in the sun and guide them. तो 4 दिन में ये ब्लैक कलर ऐसा हो जाएगा मेरे स्किन का कलर. एग्जैक्टली, नॉट लाइक दैट, बट हाँ काफ़ी हद तक. ठीक है. नाउ हाउ द बॉडी कम टू नो बिकॉज मोर एंड मोर UV rays are falling. UV rays will trigger the DNA. DNA will produce RNA. RNA will produce enzymes, and they will produce more and more melanin, and they will cover the skin, and the color will darken. But suppose after 5 days my work is over, now I am not going to sun at all, I am not exposing to sun, then my skin will, those black colors are those melanin which is secreted in excess, उनका काम खत्म हो गया. Slowly those will be dissolved. नहीं होते हैं तो फिर वो गोरेपन की क्रीम कुछ काम नहीं करती है, बकवास है सब. चलिए आप समझ गए ना एंजाइम्स के बारे में. एंजाइम के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हमने. एंजाइम सारे के सारे प्रोटीनियस है. पहली बात, एंजाइम कैन बी मेड एंड डिस्ट्रॉयड एज पर रिक्वायरमेंट. व्हेन द नीड इज देयर दे विल बी मेड, व्हेन देयर वर्क इज ओवर दे विल बी डिसॉल्व्ड. एंजाइम्स कैन कंट्रोल reactions as and when it is required, and enzymes are very specific. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला के यूरिया बनाना है तो एक ही एंजाइम काम आएगा, यूरिएज. इफ दैट एंजाइम इज देयर देन यूरिया विल बी मेड, अदरवाइज बैठे रहो, माला जपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. दैट मीन्स वट एवर टाइप ऑफ एक्टिविटी हैज टू बी टेकन प्लेस इन द बॉडी, दैट मेनी टाइप ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. सो सपोज if you read that chapter of respiration, and if you are coming across the number of enzymes which are involved in that, glucose और 6 first क्या कहते हैं ATP को रिएक्ट करा करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, तो हेक्सोकाइनेज. ठीक है. देखिए हेक्सोकाइनेज केवल यही काम करा सकता है, दुनिया में और कोई काम नहीं कराएगा वो. So when one particular enzyme is added out of so many type of reactant, only one reaction will take place, no other reaction, no unwanted product or no unwanted things will take place. That is the beauty of enzymes. Unlike the inorganic catalyst which we use in chemistry lab, it may be magnesium, it may be iron, it may be platinum, it may be cadmium, it may be whatever nickel, it may be nickel can catalyze many different type of reaction. So अगर ऐसा होता कि एक रिएक्शन कई तरह के रिएक्शन करा सकता है, सब्सटेंस कोई भी या कैटलिस्ट कई तरह के रिएक्शन करा सकता है, एंड सपोज दैट कैटलिस्ट इज बीन एडेड, probably those reactions would have taken place which may not require at all. कितनी दुविधाजनक हो जाती स्थिति. And that is why it is the God who has knowledge, unlimited knowledge, infinite knowledge. He made biocatalyst as an enzyme instead of using inorganic catalyst like nickel or cadmium or platinum or something else. ठीक है. So I think it is clear to you कि what is the beauty. Now enzyme has an ability to control the reaction in body's temperature. Most of the chemical, the inorganic catalyst which we use, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. बॉडी अमोनिया, अभी मैंने आपको बताया यूरिया बनाती है किस किस को मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को मिला के.
The plants and ability to make carbon dioxide and urea, even we are making that thing. We are making that we are combining the carbon dioxide and ammonia to make urea. For that the body temperature 37 डिग्री सेल्सियस उसी पे ही होगा, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉडी के पास कोई शिकंजा नहीं है, कोई प्रेस नहीं है, कोई दूसरी कोई मैकेनिज्म नहीं है टू इंक्रीज द प्रेशर. So this reaction of urea formation combining carbon dioxide and ammonia is taking place in 1 atmospheric pressure and 37 degrees Celsius. The same process if we had to do in Haber's process in industry, we require 450 degrees Celsius and 250 atmospheric pressure and nickel or whatever type of catalyst. Imagine 450 degrees Celsius. हम जिंदा बचते क्या? ठीक है. सो दैट इज द ब्यूटी. द एंजाइम कैन कैरी आउट रिएक्शन इन बॉडीज ओन कंडीशंस. आज तक हम कोई मैकेनिज्म नहीं ढूंढ पाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिला करके ग्लूकोज बना देंगे. टेस्ला साहब ने चैलेंज दे रखा है. अगर आप कोई नई ऐसी प्रोसेस बनाएंगे जिससे पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता, तो ही विल गिव सम करोड्स ऑफ डॉलर्स, रुपीज रादर ऑफ डॉलर्स. तो चैलेंज एक्सेप्टेड. आप जाइए, करिए, कुछ करके दिखाइए नया. ठीक है. सिंस इट इज़ माई ओपन लेक्चर, इसका कोई क्वेश्चन आंसर से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें. ठीक है. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो द एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से रिएक्शन कराते हैं. वी नीड नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इंक्रीज द प्रेशर और इंक्रीज दिस थिंग, कुछ और नहीं करना है. दूसरी बात, एंजाइम जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. ठीक है. अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दिस. प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए तो रिएक्शन में. एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, तो हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं एंजाइम्स के बारे में. हाँ, एंजाइम्स को नाम कैसे देंगे? हाउ आर द नेम एंजाइम्स नेम? जैसे मैंने कहा था यस्टरडेज लेक्चर की, शुगर को नाम देने के लिए हम एक सफिक्स लगाते हैं OSE. एंजाइम को नाम देने के लिए हम एक सफिक्स लगाएंगे ASE. अगर आपको ये वर्ड कहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए ये एंजाइम है. ग्लू, यूरिएज, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, जिसके ऊपर काम कर रहा है वो उसको सबस्ट्रेट कहता है, और उसके नाम के आगे ASE लगा दीजिए. तो आपका कुछ एंजाइम्स के नाम पुराने चल रहे हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पुराने जमाने, मच बिफोर द IUPAC केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दोज नेम्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग. अदरवाइज दे आर ऑल्सो गिवन डिफरेंट नेम. IUPAC नेम दिया हुआ है, लेकिन वो पुराना वाला चल रहा है तो चल रहा है. अभी उनको क्यों छेड़ना, क्यों बदलना, है ना. रेस्पेक्ट रिगार्ड भी तो कोई चीज़ होती है, साइंस है तो क्या हो. तो ये तो हाउ विल वी नेम, समझ आ गया आपको. ठीक है. एंजाइम्स जो होते हैं उनको हमने कैटेगराइज भी कर रखा, कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स किस किस तरह के रिएक्शन करा सकते हैं. एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा सकते हैं. एंजाइम रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन करा सकते हैं. एंजाइम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं. एंजाइम क्या कर सकते हैं? लाइगेज करा सकते हैं. एंजाइम क्या कर सकते हैं? लाइसिस करा सकते हैं. ठीक है. तो अलग अलग तरह के जो है वो किसी का फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली दे आर कैटेगराइज्ड. ठीक है. सिंस माय वीडियो आई जस्ट वांट टू कीप शॉर्ट, तो मैं इतना ध्यान उसके ऊपर अभी नहीं दे रहा. तो दिस आर द सम ऑफ द थिंग्स ऑफ एंजाइम. नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ द एंजाइम विल बी अफेक्टेड बाय इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों. मैं अक्सर पूछता हूँ बच्चों को क्लास में, एंड दे आर नॉट इन अ स्टेट टू आंसर not the time. You must know. देखिए ना, हमारी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है जब तक हम उसको ज़िंदगी में नहीं उतारे. समझना ज़रूरी चीज़ है. ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको कहीं अप्लाई कर रहे हैं, है ना. एंजाइम्स में यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ, यहाँ एंजाइम एक्टिविटी लिख देता हूँ. यह 0 डिग्री, -5 लिख सकते हैं, -5. यहाँ लिख देता हूँ -2, यहाँ लिख देता हूँ 0, यहाँ लिख देता हूँ 5, 10, 15. बढ़ा देता हूँ, चलिए बढ़ा देता हूँ सीधे.
ऐसा क्यों नहीं करते, ये -10 कर देते हैं, -10 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, -20 कर देते हैं, 30, 40, 50, 60, 70। चलिए सर, जब आप -20 में रिएक्शन रखेंगे, हो गई नहीं, कुछ रिएक्शन होने वाली नहीं है, 10 में भी नहीं होगा, 0 में भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत हाँ, और 40 पे आकर के रिएक्शन मैक्सिमम और 50 पे भी चलेगी, और उसके बाद खत्म, द रिएक्शन विल कम अप टू एन एंड। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। आपने ऑमलेट बनते हुए देखा है, गर्म तवे पे जैसे अंडा डालते हैं, एंजाइम स्पॉइल्स, प्रोटीन स्पॉइल्स, तो प्रोटीन का नेचर ही चेंज हो गया, तो वो प्रोटीन बचा ही नहीं जो वो था। सो हाउ विल इट कैरी आउट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन? 5 मिनट, ठीक है। सो दैट एंजाइम विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द रिएक्शन, इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल डैमेज, इट विल बिकम फंक्शनलेस फॉरएवर। And that is why in olden time, or rather now, even every number of people are boiling, heating the food number of times in a day if they don't have a fridge, or if they don't want to keep the food in fridge. तो आप गर्म कर देंगे, एंजाइम खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप ठंडा करते हैं तब एंजाइम की एक्टिविटी बंद होती है, बट एंजाइम इज नॉट स्पॉइल्ड। सो यू कीप योर फूड इन -18 पे, आपने अपना चिकन ला के रखा है, 10 दिन रखो, 1 महीने रखो, 5 महीने रखो, खराब नहीं होगा। बट द डे यू ब्रिंग इट आउट, लिखा रहता है, वो बहुत सारे जो फूड होते हैं जो अपन फ्रीजर में रखते हैं, उसमें लिखा रहता है वंस थाउ प्लीज कंज्यूम इट। एक बार बाहर निकाल के एंजाइम विल बिकम एक्टिव अगेन एंड इट मस्ट हैव स्पॉइल्ड योर फूड एंड नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गेट द सेम टेस्ट, एंड देन टुमारो यू मे ब्लेम दैट कंपनी कि उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। इट इज नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज दे हैव मेंटेन टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस, बट यू डिड नॉट। ठीक है। सो इफ यू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर below 0 degree Celsius, the enzyme activity will decrease, and that is why you see number of animals go in hibernation or winter sleep, because they are not able to maintain their temperature. Plant growth is reduced highly during winter. There are number of animals which you cannot see, जो insect वगैरह सब पता नहीं कहाँ चल जाते हैं, तो सही, जिंदा तो है, नहीं होंगे तो जब उनका सीजन आएगा कहाँ से आएंगे? How will you get a housefly all of a sudden in the summers when during winter they were not there? तो विंटर्स में दे वर हाइबरनेटिंग समवेयर, दे वर देयर, ठीक है। तो दिस इज द एंजाइम एक्टिविटी, हाउ इट इज अफेक्ट बाय टेम्परेचर। सिमिलरली एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्ट बाय द कंसंट्रेशन। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इफ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज। pH, every enzyme works at a particular range of pH. Some are working in the acidic medium as we studied that pepsin, some are working in a basic medium like trypsin, some are working in a wide range एसिड से लेकर के बेस तक, जैसे लाइपेज, ठीक है। सो एंजाइम्स आर वर्किंग इन डिफरेंट पीएच, बट एसिडिक वाले को आप एसिडिक जैसे वो बेस में आते हैं, दैट इज द पेप्सिन, एज इट कम्स इनटू इंटेस्टाइन, ट्रिप्स जैसे बेसिक मीडियम इज देयर, दैट एंजाइम इज डैमेज फॉरएवर, ठीक है। सो पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आपने दूध रखा है और उसमें एक नींबू डाल दीजिए, पीएच चेंज होते ही क्या होगा, दूध का फट जाएगा दूध, ठीक है। सो द प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड फॉरएवर एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन व्हिच दे आर मेंट फॉर। इज इट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल कैसे होती है, हाउ विल बी एबल टू कंट्रोल, बिकॉज वी आर स्टडीड दैट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज। तो ये भी एक बार डाल दिया तो खत्म नहीं होंगे। तो बॉडी हैज एन एबिलिटी टू डिसॉल्व प्रोटीन, पेप्सिन यहाँ डाला स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में आकर के मीडियम चेंज कर दो, पेप्सिन का काम खत्म, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द वे। एंड सेकंड इज फीडबैक मैकेनिज्म। द बॉडी हैज एन एबिलिटी, वो देख लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस ज़्यादा हो गया, देन एंजाइम जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटल चिल्ड्रन, दिस विल नॉट बी यूज्ड फॉर असेसमेंट, क्वेश्चन इसके बेस नहीं आएंगे, तो यू नीड नॉट टू स्टडी इट फॉर एग्जाम। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, यहाँ हमारे पास एटीपी है, ग्लूकोज एंड एटीपी मिक्सिंग, ग्लूकोज 6
फॉस्फेट बना रहे हैं, है ना, फॉस्फेट, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड यहाँ पे एडीपी एंड इसके लिए एंजाइम आ रहा है एक्सो kinase. As long as glucose 6-phosphate is required, it will be withdrawn from there. I said the concentration of reactant is more than the product, the reaction will go in this direction. When the concentration of product will increase, then the molecule which is attached there, that will not leave space and the activity will stop. ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ेगी दोबारा इसको हटा दीजिए, एंजाइम विल बिकम एक्टिव अगेन एंड द प्रोसेस विल बिगिन. दैट्स ऑल चिल्ड्रन. अगेन आई विल पुट सम टाइम मोर अबाउट दिस एंजाइम वीडियो, ठीक है, बट दिस इज ओनली फॉर योर एक्स्ट्रा स्टडीज. दैट्स ऑल चिल्ड्रन. थैंक यू एंड वन मोर वीडियो आई विल पुट. एक तो दो तरह की वीडियो मेरे को डालनी है. एक मैं एक टेस्ट भी लूँगा, उस टेस्ट के बेस पे आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दूँगा, ठीक है, बिकॉज मेनी ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट सबमिटेड देयर फाइल. अगर आप फाइल प्रोजेक्ट सबमिट करते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई लेट टू डू समथिंग एल्स. दैट्स ऑल चिल्ड्रन. थैंक यू. गुड डे.